स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, चलिए अभी हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। ज्योत्सना, कंटिन्यू द सेम पैटर्न। ओके, स्टार्ट फ्रॉम वन अगेन इफ यू हैव कवर्ड द ऑल। स्टार्ट अगेन। अब मैंने पता ये नहीं मैम, रोहिणी मैम का नाम कैसे स्किप हो गया, मुझे दिखा ही नहीं उनका नाम। मैं क्योंकि मैं ओके, स्क्रॉल कर रही थी यू हाँ। स्टार्ट फ्रॉम रोहिणी ओनली, डोंट वरी। हाँ जी, कभी ठीक कभी है हो मैम। जाता है किसी के साथ। No, इट्स no, it's okay, Jyotsna. I have no problem with anyone. I'm sorry, but it's my personal thing. Please don't take it to yourself, please. This is not for anyone, please. Not ठीक at है। all. Don't even think like that. okay, Rohini, you be in my class, okay? Don't feel bad about anything. कभी कभी किसी के साथ होता है ऐसे। Try to learn what you are getting. उसके बाद आप बाद में सुमेधा मैम से बात करें, ठीक है? Okay, Yes, your ma'am. chance Sure, in I. my class. Thank you, ma'am. Your screen is visible to you? Yes, ma'am. I can see your screen. Okay. So my question goes to you now. Uh, third lord is posited in which house, and who is the third lord? Just give me a moment, ma'am. Could you please repeat the question again? For the Vrishab Lagna, who is the third lord? The horoscope which is being displayed, it's a horoscope of Vrishab Lagna. Which planet is the third lord and where it is posited in this chart? Mithun is the third lord. Abhi, the difference is what? Mithun is 3 number sign. It's a Rashi. That's right. It's a Rashi. House is from first house. I am repeating for all, please take care and listen properly. When we are counting the house, you don't have to see all these numbers. ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे नंबर राशियों को डिनोट कर रहे हैं. House is not this. House always stays same. This will stay as house number 1 always. कोई भी लगन हो, कुछ भी हो, ये हमेशा हाउस नंबर 1 है. ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है. अब मैंने क्वेश्चन पूछा, माय क्वेश्चन वाज, सॉरी, third house, first house, second house, third house. So third house is this one. Without Yeah, the the number, third you house have to see the is third house. Third house got which it's a sign? Kark. It's a Kark. Third house में Kark राशि है. Okay. So who is the lord of Cancer? That is Moon, Chandrama. Where it is posited in which house and which sign? It is in fourth house, and the sign is Man Singh, which is Leo. Okay. So you have to always keep in mind, houses are fixed. If I take this and rotate it to some other ascendant. Now you tell me which sign is there in the third house. Here is Mangal, which is Mangal, which is a Mesh Rashi, and the Swami is Mangal. And it is posited in which house? This right now, Mangal is in. It's in ma'am 12th house. In which sign? It is a Makar sign, which is Capricorn. I hope ab sabko clear hoga. Houses are always fixed. If I change this to some other ascendant or some other lagna, still the house is same. Third house is third only, but the sign will change. Rashi change hoga. House will remain fixed. So houses fixed hai. Signs they keep on changing depending upon the ascendant which you will get at the time of birth. और ये सभी ग्रह क्यों बदलते हैं? ठीक है, आप ही क्वेश्चन का आंसर करो. हर एक मेरा क्वेश्चन है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ग्रहों की स्थिति और अलग अलग लगन क्यों मिलता है.
रावत सर, रावत सर, यस मैम। मैडम एक बार प्रश्न दोबारा दोहरा देंगे? मैंने ये पूछा कि आप इतने सारे लोगों के हॉरोस्कोप देखेंगे, जी जी। तो ऐसा क्यों होता है कि हर एक का हॉरोस्कोप अलग रहता है? व्हाट इज द रीजन? वो रीजन मेरे विचार से ये है मैम कि जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा की ओर जो राशि होती है वो उसका लग्न होता है, और चूंकि प्लैनेट्स जो हैं मूव करते रहते हैं, ग्रह मूव करते रहते हैं, इसलिए जो लगन के समय आएगा उस हिसाब से उसका लगन की कुंडली बनती है। यानी कि ग्रह मूव करते हैं, इसलिए हर एक जातक का जो हॉरोस्कोप होगा वो अलग अलग होगा। ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग। इसी को हम बोलते हैं गोचर, यानी कि आकाश मंडल में ज्यादातर सभी कुछ घूम रहा है, ठीक है ना? Nakshatras are the fixed stars, but planets are moving with their specific speed and motion in their particular orbit. ठीक है, तो सभी ग्रह हमेशा चलायमान है। गोचर, ग्रह चल रहा है, चल रहा है। जो भी आकाशीय पिंड है वो चल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा चलते रहते हैं। हाउसेस फिक्स्ड रहते हैं आकाश मंडल में, राशियां मूव करती हैं, तो जैसे जैसे हर 2 घंटे में ईस्टर्न होराइजन में राशि चेंज होगी, वैसे ही हर एक पैदा होने वाले जातक के जन्म के समय जो भी आकाश मंडल में ग्रहों का गोचर चल रहा होगा, उस गोचर की जो फोटो उस वक्त खींची जब वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जहां जहां थे, जिस भाव में और जिस राशि में, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उसको लगन कौन सा मिला, उसके हिसाब से वो उसका बर्थ चार्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन अगर मैंने माना कि अभी वृषभ लगन उदित हो रहा है, तो ये चार्ट, लेकिन अभी 2 घंटे बाद अगर मैं इसको देखूं जब ईस्टर्न होराइजन में मिथुन राशि आ जाएगी, तो चार्ट ये हो जाएगा। बट दोनों में कॉमन क्या हुआ? क्वेश्चन टू माय नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, दोनों में कॉमन क्या हुआ? सुमन मैम, हेलो। अभी हाँ जी मैम, वृष- क्वेश्चन नहीं सुन पाए। अभी मैंने ये बोला वृषभ लगन था अभी एट प्रेजेंट, हाँ दो जी मैम। घंटे बाद लगन चेंज हो जाएगा, सो यू विल गेट अ चार्ट कि जिसका की लगन जो है वो मिथुन हो जाएगा। मैम हाँ, मिथुन हो जाएगा। हाँ जी मैम। What is common in chart which was 2 hours earlier than this chart? The chart with the Rishabh ascendant and Mithun ascendant, what will be common? मैम राशि मतलब उसमें मतलब भाव तो सेम रहेंगे, राशि चेंज हो जाएगी। मैम समझ नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट कोई आंसर करेगा इसको? Could you रचना please जी, repeat the question once more? My question is, I repeat for all. और ज्योत्सना जी आप नाम बता दीजिए कौन आंसर करेगा, वो थोड़ा सुन लेंगे अच्छे से। रचना जी, ठीक है, मैंने ये बोला कि अगर मैंने ये माना कि आज अभी के समय में वृषभ लगन, टॉरस लगन इज राइजिंग, तो इस जातक का जो जन्म के समय का हॉरोस्कोप था वो ये था, ठीक है? 2 hours के बाद ये जो लगन में राशि उदित हो रही है 2 नंबर, ये 3 नंबर हो जाएगी। तो मैंने ये बोला कि 2 नंबर और 3 नंबर वाले चार्ट में कॉमन क्या है? मैम नहीं बता पाऊंगी। ओके, Ma'am, अच्छा is it ज्योत्सना moved? जी, दिस क्वेश्चन इज कॉमन टू ऑल। एनीबडी हु विल रेज द हैंड वो ही आंसर करे। एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? Yes, I would. Yes. Is it? I'm just doing my tukka marview, ma'am. Just thinking. It could be Chandrama. नहीं, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है? What आपने is बोला common? जैसे वृषभ लग्न, common will be. Uh, no, I don't think so. I can answer this. Ma'am, may I?
यस। मैम सूर्य की जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे, सूर्य की राशि वही रहेगी मतलब। और कुछ? मैम चंद्रमा की राशि भी वही है, सिंह राशि है। और कुछ? हाँ मुझे इतना ही पता है। मैं Abhi, the question is still open to the floor. Anybody who wants to answer, please raise your hand and don't create a quiz in the class. So otherwise, I will explain ताकि आप लोग उसको think कर सको और analyze कर सको. Question is open. If nobody will raise the answer hand, then I will answer. Jyotsna ji, आप देखिए because I have to shift the screen when I have to see मैम this. इसमें निकिता मैम ने भी आई थिंक हैंड रेस किया है, एक मैंने भी किया हुआ है हैंड रेस, निकिता मैम ने भी हैंड रेस किया है। हाँ बताइए निकिता। मैम अभी मैंने ही बोला था कि जो सूर्य है वो मतलब कुंभ राशि में ही है, पहले भी कुंभ राशि में था, उसकी राशि चेंज नहीं हुई। ओके, तो आप हैंड लो डाउन कर लीजिए। और किसी ने रेज किया हैंड? मैम मैंने किया था हैंड रेस, मैं भी कुछ मैम बोलना है, गैस ही ऐड कर करना रही है हूँ। आपको? हाँ जी, गैस ही कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो जैसे स्पीड जो होती है ग्रहों की उसके आधार पर अधिकतर ग्रहों की राशि तो वही रहेगी, भाव ही चेंज होंगे। जहां तक मैं मतलब मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, मैं जस्ट बता रही हूँ, तुक्का ही मारी हूँ मैं भी। हाँ तुक्का बहुत सही है आपका। गुड तुक्का। थैंक ठीक है, द आंसर इज, देखो मैं सिर्फ आपको यही तो दिखा रही हूँ कि आप ऑब्जर्व करो। जब तक आप एस्ट्रोलॉजी में ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं। अभी देखो, आई रोटेट दिस एंड आई वांट एवरीबडी टू वॉच। 11 नंबर राशि में सन 28 डिग्री का है, मरकरी 25 डिग्री का है, शुक्र 1 डिग्री का है। तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि ग्रह अपनी किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से चलते हैं। सूर्य एक राशि में कितने समय तक रहता है? एनीबडी? ज्योत्सना नाम बोलो आप। केसी गुप्ता सर, रचना मैम का शायद आंसर दे दिया था शायद, केसी गुप्ता सर। 2.5 घंटा। एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। मैडम पूनम एक मैम, मैम 1 महीना। अभी ज्योत्सना कंट्रोल, ओनली 1 person शुड स्पीक। हाँ जी, मैंने ये बोला पूनम मैम की बारी सूर्य है। एक राशि में कितने दिन तक रहता है? पूनम And मैम 28 days, 16। 28 to 30 days. बाय 28, 30 डेज। एक दिन में सूर्य Because लगभग 1 डिग्री चलता है। एक किसी भी राशि का अगर हम इक्वल हाउस सिस्टम लेते हैं तो एक हाउस को हम 30 डिग्रीज में बांटते हैं। सूर्य रोज 1 डिग्री मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल कुंभ राशि है आज के दिन। अब मैं उस क्वेश्चन को आंसर कर रही हूँ जो मैंने पूछा था, सब लोग ध्यान से सुनो। और ज्योत्सना ने बहुत अच्छा आंसर करा, फिर भी एक बार ध्यान से सुनो। आज के दिन आकाश मंडल में जो ग्रह जिस राशि में है, अगर वो अपने लास्ट डिग्रीज में नहीं है तो आज के दिन वो अगर वहीं पर रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन के लिए हम बोलते हैं कि वो एवरी डे 1 डिग्री मूव करता है। तो आज अगर मैं इस वाले हॉरोस्कोप को मान लूं कि ये आज का हॉरोस्कोप है, तो सन जो है वो मुझे दिख रहा है 28 डिग्रीज। ये यहाँ पे दिख रहा है सबको 28 डिग्रीज। इसका मतलब अभी कुंभ राशि में 2 डिग्रीज और चलना है, बिकॉज पूरी की पूरी एक साइन 30 डिग्री की हमने मानी है। तो एक दिन नेक्स्ट डे वो 1 डिग्री और चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 1 डिग्री और चलेगा। इसका मतलब 2 दिन तक तो और वो बिल्कुल यहीं रहे। फिर उसके बाद मरकरी, वो भी उतना फास्ट मूविंग नहीं है कि वो एवरी डे मूव करता है, उसको भी टाइम लगता है। वीनस, उसको भी टाइम लगता है। मार्स, उसको भी टाइम लगता है। सैटर्न, उसको भी टाइम लगता है। जुपिटर को भी टाइम लगता है। सभी ग्रहों को राशि बदलने में टाइम लगता है। चंद्रमा को सबसे कम 2.25 दिन। ठीक है, वो जल्दी जल्दी भोग कर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
अगर आज के दिन सुबह से लेके रात तक 100 बच्चे पैदा हुए, उनका लगन चेंज हो सकता है। क्योंकि लगन चेंज हो जाएगा, इसलिए हर राशि अलग अलग भावों में आ जाएगी, लेकिन स्लो मूविंग प्लैनेट्स, ज्यादातर सभी प्लैनेट्स जिन राशियों में आकाश मंडल में गोचर कर रहे हैं वो उन्हीं राशियों में रहेंगे, अगर वो लास्ट की डिग्रीज पे नहीं है और वो राशि बदलने की कगार पर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गिवन चार्ट में अगर मैं एक एक प्लैनेट को देखूं तो केतु 1 डिग्री 21 मिनट्स पे है, बट वो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। ठीक है, तो वो भी एक ही दिन में नहीं बदलेगा। सूर्य 1 डिग्री बदलता है, 1 डिग्री चलता है एक दिन में, वो 28 डिग्री का है, वो भी आज नहीं बदलेगा। मरकरी भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, 45 डेज 48 डेज 28 डेज मरकरी के लगते हैं, अराउंड 45 डेज मार्स, और इसके भी अराउंड 45 डेज। तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो जल्दी से राशि परिवर्तन करे। जुपिटर 1 साल तक रहेगा पूरे, जब तक 30 डिग्रीज ना हो जाए। शनि 2.5 साल रहेगा, तो वो भी बहुत धीरे धीरे चलता है। तो उसी दिन तो वो कभी भी गोचरवश अपनी राशि नहीं बदलेगा, अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल लास्ट डिग्रीज पे है और आज ही चेंज होने वाला है। तो ये ध्यान देने की बात है कि आज पैदा होने वाले जातक गोचर के ग्रहों के राशिगत स्थिति लगभग सेम होगी, लेकिन भावगत स्थिति ग्रहों की बदल सकती। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अभी पैदा हुआ, वो वृषभ लग्न का था, और हमने उसको ये देखा कि उसके 10th हाउस में 11 नंबर राशि आ रही है, जिसमें सूर्य मरकरी और शुक्र बैठे। अभी 4 घंटे बाद कोई और बच्चा पैदा हुआ, उसका कर्क लगन उदित हो गया, उसका भी 11 नंबर राशि में सूर्य मरकरी और शुक्र है, लेकिन वो 10th हाउस से अब 8th हाउस में आ गया, बिकॉज उसका लगन चेंज। इसका मतलब ग्रह गोचर राशिगत सेम रहा, लेकिन भावगत बदल गया जैसे ही उसका टाइम ऑफ बर्थ चेंज हो। Is that clear to all? Anybody has got any question for this? You can ask. ज्योत्सना देखो, अगर कोई हैंड रेज करता है तो उसको बोलो, म्यूट अनम्यूट करके बोलेंगे। शर्मा सर ने हैंड रेस किया है। बोलिए सर। शर्मा जी बोलिए। शर्मा सर, और किसी का क्वेश्चन है, क्लियर नहीं हुआ? सबको समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है? मैम आर के शर्मा सर हैंड रेस कर रहे हैं। उनको अनम्यूट चेक। मेरे को तो किसी का हैंड रेस दिख नहीं रहा है। ओके, अनम्यूट है आप। शर्मा जी बोलिए। हेलो। शर्मा सर बोलिए आपने शर्मा हैंड जी, रेस किया आपका हुआ तो है। माइक भी अनम्यूटेड है, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम एक दफा आप दोबारा रिपीट कर दें। केसी गुप्ता बोलता हूँ। जी। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए। मैम आपने बताया कि बृहस्पति जो है 12 महीने यानी 1 साल रहता है, लेकिन बृहस्पति तो 13 महीने एक राशि में रहता है। कभी कभी अगर रेट्रोग्रेड होता है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ऑन एन एवरेज इट इज 1 ईयर। ओके ओके। ऐसे अगर आप मंगल को भी लेंगे वो 45 डेज के अराउंड रहता है, बट अगर वो वक्री हो जाता है तो कभी कभी वो 3 to 6 months भी एक ही साइन में रह सकता है। दोज आर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है मैम, ठीक।
और कोई सवाल है जो मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसके रिगार्डिंग? मैडम एक दफा रिपीट कर दीजिए। मैंने ये बोला कि आज के दिन आकाश मंडल में जो ग्रह गोचरवश जिस राशि में है, अगर वो राशि अंत में नहीं है और राशि बदलने वाला नहीं है, तो आज के दिन जितने भी बच्चे पैदा होंगे, हर वो ग्रह जिस राशि में स्थित होगा उसी राशि में आज के दिन के पैदा होने वाले बच्चों को ग्रह मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हर 2 घंटे में उदित होने वाला लगन बदल जाता है, इसलिए जैसे ही लगन बदलेगा हर राशि की भावगत स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन गोचरवश आकाश मंडल में ग्रह क्योंकि एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, अगर वो राशि अंत में नहीं है और राशि बदलने वाले नहीं है, तो वो उन्हीं राशियों में रहेंगे। तो कॉमन बात ये हुई, आज के दिन पैदा होने वाले बच्चों के राशिगत ग्रहों की स्थिति सेम रहेगी, लेकिन भाव बदल सकते हैं। जैसे ही लगन बदलेगा भावगत ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर वृषभ लगन का चार्ट अगर किसी जातक को मिल रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और 10th भाव में कुंभ राशि में सूर्य बुध और शुक्र मिल रहे हैं, तो अगर 4 घंटे बाद कर्क राशि उदय हो रही हो, तो भी कुंभ राशि में सूर्य बुध और शुक्र ही मिलेंगे, मगर अब वो 10th भाव में नहीं मिलेंगे, अब वो 8th भाव। ठीक है? Is that clear to all now? जी। क्वेश्चन है किसी का? You can ask 100 times in my class. No problems. I want everybody to understand what I am teaching. Don't waste your time. आप सब पढ़ने के लिए आए हो और बहुत सब एकदम समझदार लोग हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो मैं चाहती हूँ सब लोग take the advantage of class and ask anything you want to ask. Clear है सबको?